Very good morning and welcome to today's induction session for Diploma in Theatre Arts. Uh, I request all of you to please mute your microphones. I'm going to give you a small presentation about the program, and we'll be talking about the details of the program, how it goes, and all that. Once I complete my presentation, you are free to ask the questions. Before that, please bear with me and please mute your microphones first. Okay. Welcome to today's induction meeting in Diploma in Theatre Arts. I'm just going to start the presentation. Okay. My presentation is visible to you? Yes, Hello? sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. Okay. Welcome to Indira Gandhi National Open University, School of Performing and Visual Arts. I'm Dr. Bhardwaj, your program coordinator from Indira Gandhi National Open University, School of Performing and Visual Arts. Okay. Uh, Welcome to today's induction meeting of Diploma in Theatre Arts. See, a Diploma in Theatre Arts, this course is offering you both the theoretical aspects and the practical inputs of the theatre to the students. The main objectives of this program would be to provide theory and as well as practical inputs of theatre, and also to provide opportunities through hands-on practice to create the theatrical performances, to provide skill-based knowledge in theatre and its allied subjects, to provide self-public employment opportunities in the field of theatre and its related arts. These are the main objectives based on which this program is now designed. So the program structure would be like on your left-hand side, if you see in red, there's a course code in between the course title, and your right-hand side, you see credits. I'll explain each one of them for you. Course code is DTH001. In IGNOU, every course will be given a code, course code, DTH001. The course title is Understanding Drama. Understanding Drama is a theory course. It is having 6 credits. What is credits? I'll tell you. And the next course is BTHL002, that is theater games, which is a practical course, which is again a 6 credit program. And the third course code is the BTH003, again a practical course, acting practice, which includes acting exercises, movement, voice, and speech. And again, it is also a 6 credits program. And the next one is the integrated program, BTHI004, scene work. Here we'll be doing some scenes, scenes from a different genre of plays. Again, it's a 6 credit program course. And the last but not least, BTHI005, it's a classroom play production, which is having 8 credits. Now, what are these credits? In order to understand the credit, uh, every course now is being designed in credits, whether it is conventional system or in open university system. In open university system, the credit is 1 credit is equal to 30 study hours. So in order to understand the course 1, suppose understanding of drama, which is 6 credit program, it is 6 into 30 hours, 180 hours are needed, minimum needed to complete this understanding of drama. You read it, you submit your assignments, you go for self-learning questions, answering questions, doing some quiz and some activities given in that. Everything includes this 180 hours. Okay, and then be same with the theater games. It again requires 180 hours to complete whatever the syllabi or the games which are given in theater games. Similarly, with acting practice is a 6 credit program. We need one more 180 hours. Scene work needs one more 180 hours. And whereas the classroom production needs much more hours, it is a 30 into 8. That many hours we need to do a play production. So this is the structure. Understanding a drama, theater games, acting practice, which includes movement and voice and speech. And the third one is the scene work, and fifth one is the classroom play production. If you see these course codes, you find theory, practical,
And BTHI is an integrated one. What is the integration means? It requires both it is the combination of both theory and practicals. You need to do some theory work also. You need to read those scenes, analyze them. Then you will be doing some practicals in the name of scene work. Similarly, with the play production also, you will be reading the play. You are analyzing the play production in theoretical aspects and doing the play in a practical aspect. This is the structure which you are planned for diploma in theatre arts. Okay. Now, course contents, I'm just going to give you briefly the course one which we are talking about, understanding of drama, which is a theory program, which is having 6 credits. In We prepare a self-learning material. IGNOU prepares self-learning material for each course. In the sense that we will have a book which we call as SLM. The shortcut of SLM is nothing but the self-learning material, because most of the cases in open and distance learning, there is no teacher. The teacher is missing. The teacher doesn't come to your classroom and give you a lecture or give a demo or whatever. Because of that simple reason, we prepare the self-learning material, which is a self-explanatory. This self-learning material is different from a textbook. Textbook is writing a textbook or reading a textbook. Those objectives are different. By reading this self-learning material, the reader doesn't feel the lack of teacher. Everything is self-explained. As if somebody is sitting in front of you and talking to you. In that manner, these study materials are being prepared. And whereas the practicals are concerned, we have prepared the manuals. Each exercises were given, and these exercises will be realized at the program study center. Practical will be done with the help of academic counselor. We call them. We don't call them teachers or lecturers or professors here in Open and University. We call them whoever teaching us, whether it is practical or theory, we call them academic counselor. But now, for your sake, understanding of drama, the subject is divided into each blocks, and each block again divided into each units. One block may be having 3 units, 4 units, 5 units, it depends. But each unit will have 5,000 words, only 5,000 words. Suppose unit 1 is under drama and theatre. You want to understand what is drama and what is theatre. A 5,000 words study material is provided to you. You'll be reading it and you'll be understanding what is exactly drama and theatre. Not only you read that, but we can also have some counseling classes on that. Once you read these materials, you come back with some questions or some clarifications. The academic counselor will give you, will clarify your doubts. He or she is not going to take the entire topics again, but they will clarify. Before that, you are supposed to read these units and come to the counseling classes. In drama and introduction, we have drama and theatre. Unit 1, unit 2 is aspects of drama. Unit 3 is different types of drama. And unit 4 is having the development of 20th century drama. And in block 2, we are talking about Macbeth. The play Macbeth, you may be knowing, written by Shakespeare. In unit 1, background of the study of the play and discussion, and discussions on Act 1, Act 2, Act 3, Act 4, Act 5. And in Unit 5, what are the major characterizations and the techniques which the Shakespeare has been using to create these characters in the Macbeth is well discussed in this. This is block 2, talking about the play Macbeth. And the next 3, the third block is talking about an Indian modern play. You may be knowing Aadhe Adhure, Halfway House, written by Mohan Rakesh. The unit 1 is talking about Mohan Rakesh's life and his works. And unit 2 is Halfway House, general reading. Unit 3, how the middle class is depicted in Aadhe Adhure, and how women and society discussed in Halfway House. And what is the dramatic forms which Mohan Rakesh is using in Halfway House in the form of unit 5. And the next is the block 4. Here we are talking about a study of Ghasiram Kotwal. Ghasiram Kotwal, again written by Vijay Tendulkar. You may be knowing, a very famous play, modern Indian play. Unit 1, Ghasiram Kotwal. What is exactly Ghasiram Kotwal? And unit 2, background of the play and plot. And unit 3, the themes and the characterization discussed in Ghasiram Kotwal. And again in unit 4, the dramatic techniques used in Ghasiram Kotwal. Okay.
These are the things which we are talking about understanding of drama. The course 2 is theater games, as I told you, 6 credits. The manual has been prepared. Please refer the manual for variety of theater games which we have given. And in course 3, acting practice, which is having acting exercises, movement exercises, voice and speech exercises. These 3 variety of exercises were designed in manual 2, and you can also refer the manual for different exercises. How you are going to refer these manuals, I will tell you. And course 4, scene work. This is the integrated one, 6 credit. Unit 1, we are talking about the basic understanding of scene work. What exactly you mean by scene? And how many types of scenes are there? Scenes for practice, we have given some 15 scenes in the manual. Different scenes were provided from different generic plays for reference. 6 scenes can be selected from different plays and done under the supervision of a teacher or academic counselor, as I told you earlier. So the last and final course is the classroom production, which is having 8 credits. It is also an integrated. We have prepared a manual. In unit 1, we have given a basic understanding of what is a play production, what exactly goes into play production, how the costing has been done, or what are the technicians, who are the technicians who are going to work in a play production. And we have given some 10 plays for practice. 10 नाटक इसमें दिए गए हैं. You are supposed to read all those plays. You are supposed to analyze them theoretically. The learners are expected, learners means you people, the students are expected to read all the plays and analyze them for performances, and at least 2 plays each. मतलब 2 नाटक करेंगे हम in the period of your study in diploma. It is expected to do. Okay. Again, it is done under the supervision of a teacher or a counselor. This is the program structure actually I'm talking about. Study material, which I was talking about. The study material for diploma in theatre arts can be downloaded from eGnan course website. eGnan course website का मैंने यहाँ पे आपको website का address दिया हुआ है. The study material now, the study material is under printing because of this COVID situation. Once, please mute your microphone. Somebody's mic is on. It is creating disturbance. The study material is under printing. Once they are ready, all the registered learners, means you people, will get your study material at your doorstep. आपके घर पे आपके एड्रेस आपने जो भी दिया होगा अपने एडमिशन के टाइम पे आपका स्टडी मटेरियल वहां पहुंचाया जाएगा. मगर फॉर द टाइम बीइंग, इफ यू वांट टू सी ऑल द स्टडी मटेरियल्स, you can go to this egnankosh.ac.in. वहां जाके डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स DTH टाइप करेंगे. उसमें जो मैंने बताया था 5 कोर्सेस का सारा मटेरियल उसमें आपको दिखेगा. यू कैन डाउनलोड देम, यू कैन रीड देम फॉर योर रेफरेंस फॉर द टाइम बीइंग. once the material is printed, now it is under printing. हो सकता है कि और जल्दी से हम कोशिश कर रहे हैं प्रिंटिंग हो जाए. वो जैसे ही प्रिंट हो जाते हैं तो you will get that material to your address which you have provided while doing your admission to the course. And the conducting of practical sessions. See, practical sessions are essential components of these programs. The practical sessions are supposed to be done at your program study center, where you have chosen a program study center while applying. So you are expected to come. All practical sessions are being done at the weekends. Weekends means Saturday, Sunday, because this is an open university. We cannot conduct on weekdays because people will be working. The timings are different. So we'll be doing practical sessions on Saturdays and Sundays. You have to come and attend these classes for the benefit of getting the practical experiences. Okay. And evaluation. See, once you complete all the courses, how you are going to be evaluated. That is the most important thing. IGNOU follows a 2-layer system of assessment. That is, one is the continuous assessment and the second one is termed assessment. As you can see, on the left side, you have a continuous assessment. On the right side, you have a termed examination. In the sense that you are supposed to submit assignments for each program that will have a weightage of 30%. Let us say 100 marks है उसमें, तो 30 मार्क का वेटेज आपका असाइनमेंट के लिए होगा और 70% मार्क्स का आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में होगा. At the end of the year, you will be writing the theory exam and attending the practical exam, which will have a 70% of weightage. And beforehand, you need to submit the assignments, which will have a 30% of weightage for each course. Each course के लिए you need to submit the assignment.
and without submitting the assignment, you are not supposed to, you will not be allowed to attend the term and examination, because this is continuous assessment. Why it is continuous assessment? We will see your progress in between. जैसे बीच बीच में आपका जो प्रोग्रेस है, वो का जो एग्जाम है कि ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वो टर्म में पता चलता है. तो 30-70 comes to 100 marks. फॉर एग्जाम्पल, ए पेपर इज हैविंग 100 marks. उसमें for example, understanding of drama, you need to submit an assignment of 30 marks for that, which will have a 30% of weightage of your 100 marks, and 70 marks का एक एग्जाम रिटर्न एग्जामिनेशन होगा. उसमें आप लिखेंगे लिखित एग्जाम में, तो आपका 70% वहां आ जाएगा, और 70 और 30, 30 + 70, it comes to 100% weightage of one single course called understanding of drama. This is the true with all the other courses like theater games. A practical assignment need to be submitted. Acting practice, again, practical assignment. Scene work, a practical assignment, and maybe as well as a theory also, because it is an integrated one where you are also going to analyze some of the scenes. Same with the classroom production. वहाँ पे एक play analysis करेंगे, नाटक में भी भाग लेंगे. अगर you are participating in a play, you will be evaluated for 30 marks, 70 marks, and for your theory, you will be evaluated for 30 marks. Once you complete all these, your grades will be created. You will get your marks and you will get your diploma. Okay. Points to be noted. In order to be able to appear for the term and examination, whether it is theory or practical, it's required that the student should submit all the assignments which are given to him in a prescribed schedule. अपनी मनमानी नहीं चलेगी. हमका एक टाइम टेबल यूनिवर्सिटी देती है, उसी टाइम टेबल में, विद इन द टाइम फ्रेम which is given by the university, you are supposed to submit all the assignments. All the students are required to give an undertaking to this effect. They should do it later found that they had, in fact, not submitted the assignments as prescribed. The results may be withheld or may be cancelled. अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर नहीं किया है, तो आपका पूरा रिजल्ट नहीं निकलेगा. यही कहने का मतलब है. तो you are supposed to, you are expected to, you are bound to rather to submit assignments to submit the assignments in order to complete your term and examinations. Okay, the general guidelines, program duration is 1 year, but you will be given a flexibility to complete this program in 2 years. इसका मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विल गिव यू ए फ्लेक्सिबिलिटी. अगर 1 साल में ये प्रोग्राम हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको 1 और साल दिया जाएगा, उसमें आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं. मगर आपको 2 साल के लिए क्लासेस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. 1 साल का जो क्लास शेड्यूल होता है वही होता है. उसके बाद यू कैन जस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव एनी काउंसलिंग क्लासेस. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन is English, but learners are allowed to write the assignments and as well as the term and examinations in Hindi also. ये flexibility university दे रही है. Medium of instruction is English. All the study materials are being prepared in English because in medium of instruction इस program के लिए हमने English चुना है. मगर majority of the people who are coming from Delhi, I mean the Hindi belt of India, they are demanding that we can also we may be allowed to write the exam in Hindi also. Only 2 languages, one is English and the Hindi is allowed. You can write both the assignments and term and examinations in Hindi and English. Suppose one assignment in Hindi, term and English में लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों English में लिखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों हिंदी में लिखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. असाइनमेंट हिंदी होगा, टर्म एंड इंग्लिश लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी. या फिर असाइनमेंट हिंदी में लिख के टर्म एंड इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस, नॉट एनी अदर लैंग्वेज. ओके. The qualification which you already know, it is 10+2. Fees 7,700 plus 200 of examination registration fees. It comes to 7,900, I suppose. And duration of the counseling session होंगे. थ्योरी के लिए 10% काउंसलिंग दिया जाएगा और प्रैक्टिकल के लिए हम 100% काउंसलिंग देंगे. ठीक है. 100% मतलब वॉट एवर द आवर्स. प्रैक्टिकल के लिए 26 क्रेडिट्स का हमारा प्रैक्टिकल बन रहा है. उसमें हम 780 आवर्स का आपको काउंसलिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे. आपका साल भर का जो प्रोग्राम है, ठीक है ना. अभी साल भर का नहीं हुआ क्योंकि कोविड की वजह से लास्ट डेट बढ़ा गया.
होते ही most probably in the month of June or July, we will be going for the term examinations. Okay, theory exam assignments will be submitted for all the courses, as I told you earlier. Theory exam ka term examinations will be conducted at the end of the session. The date will be announced by SED IGNOU. SED, what is that? Student Evaluation Division, Indira Gandhi National Open University will give you dates. उसी डेट्स में आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा. प्रैक्टिकल का जहां एग्जाम होता है वो तो प्रोग्राम स्टडी सेंटर में होगा. और जहां थ्योरी का सवाल है, आप कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी बैठ के भी आप उसका एग्जाम दे सकते हैं, मगर आपको एग्जामिनेशन का सेंटर चुनना पड़ेगा वाइल फिलिंग ऑफ द एग्जाम फॉर्म. एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे आप, उसमें आपको एक सेंटर का ऑप्शन आएगा. आप सेंटर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप नियर बाई. Suppose you are in Delhi, but you want to write the exam in somewhere else. You can have to choose the examination center with your आपका choice का examination center choose कर सकते हैं. Within the Delhi, there are 10-15 centers are available. You can write whatever. आपका residence को जो नजदीक पड़ता है वो देख के आप उसमें exam दे सकते हैं. Term and examinations, the guidelines for practicals, external assessment for practical examination. See, somebody will be teaching you practicals, and somebody called external examiner will also come to see your performances. The same teacher who has taught you practicals, he or she may not be evaluating because कोई दूसरा इसमें black and white होना चाहिए, partial नहीं होना चाहिए. तो there will be another examiner coming up at the end of the sessions. He or she will be assessing your practicals and given marks. Assessment will be done. असेसमेंट का तो प्रोग्राम जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होंगे उसका असाइनमेंट का असेसमेंट विल बी डन. इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों होंगे. वो दोनों का मार्क्स मिला के आपका टोटल स्कोर बनेगा. असेसमेंट आई हैव टोल्ड यू वी विल बी डूइंग इट कंटिन्यूअस एंड टर्म. वेटेज मैंने आपको पहले ही बताया था. असेसमेंट का असाइनमेंट का 30 होता है, टर्म एंड एग्जाम का 70 होता है. See, all the assignments can be downloaded from IGNOU website for each section. Each learner is supposed to learn 32 credits. 32 credits को gain करना है तभी आपका program complete होगा. In the sense कि you are supposed to submit all the assignments and as well as to write the term and examination. Then only you are going to complete your program. Otherwise एक कोर्स कंप्लीट किया, 2 कोर्स कंप्लीट किया, आपका प्रोग्राम पूरा नहीं होगा. आपको 5 कोर्स कंप्लीट करना है डिप्लोमा लेने के लिए. But right now, let me tell you, no assignments were uploaded in the IGNOU website because just now I got the data from your for your batch. Very soon I am going to upload all the assignments, theory and practical assignments के लिए अभी टाइम लगेगा क्योंकि once you are into practical sessions कुछ करेंगे, उसके बाद हम उनके असाइनमेंट्स के बारे में सोचेंगे. अभी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कुछ नहीं डिजाइन किया हुआ है. थ्योरी का मैं अभी एक ही पेपर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रामा. उसके लिए 1 assignment I already prepared. I'll upload it very soon. Once I upload it, I will tell you the deadline in कौन से डेट के अंदर आपको उसको हमें भेजना होगा, कैसे भेजना होगा वो पूरा फिर मैं बताऊंगा. फिलहाल के लिए अभी कोई असाइनमेंट अपलोड नहीं हुआ है. ओके, थैंक यू वेरी मच. दिस ऑल अबाउट द कोर्स एंड हैप्पी लर्निंग. Just a moment. Good morning, sir. Can I ask a question? Please, wait. Please. Okay. Thank you so much for the presentation, first of all, sir. And my question is, I want to change my study center. I think I have mailed you in this regard as well. So can you please guide me in how many time I can, how long I can change my study center? At what date or in what month? No, right now, what is your center? Right now it is Chandigarh because I am in central government job, so I have recently been transferred to somewhere else. So Chandigarh is very far from my place. That is why I want to know. But if you want to change, where to? You can change it to Delhi. There is no problem. Yeah, either Delhi or Dehradun. Currently my posting is in Rishikesh. But we don't have a program study center in Dehradun right now. You can opt for Delhi. Okay. Okay. So can I apply for it as now, or should I have to visit that? No, you can apply. There is no problem.
चेंज के लिए आप वेबसाइट पे देखिए, स्टूडेंट जोन में जाएंगे, इग्नू वेबसाइट में जाएंगे तो स्टूडेंट जोन करके है, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उससे फॉर्मेट आप फिलअप करके भेजिए और दिल्ली चेंज हो जाएगा, ठीक है। Okay. Is there requirement of any documents needed to attach with, or the only application is enough? Really, I don't know. Actually, I am not into that because I am here to tell you something about very much academic things के लिए मैं यहाँ हूँ, पर कुछ ऑफिशियल चीजें हैं तो वो तो मैं भी लर्न कर रहा हूँ कैसे चेंज होगा, but definitely the university will give you an opportunity to change your program study center, okay? Because that flexibility given. Okay. Anyway, I will let you Thank you know, so much, Shruti. sir. I'll also go through that because my है ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है वो उसमें मुझे खुद जाके देख के फिर आपको फिर फीडबैक देना नहीं पड़ेगा, सर, ठीक आई है ना। हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट वेबसाइट पार्ट एंड एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम प्लीज यही है कि डॉक्यूमेंटेशन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, तो दैट इज व्हाई आई वाज लाइक यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड, दैट maybe इज व्हाई आई आस्क्ड। no, I am experienced in other words but डेफिनेटली not सर। in this, like मैं देखता हूँ, मुझे कुछ ज्ञान होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा, श्योर, ओके। डेफिनेटली सर, आई विल वेट या फॉर योर रिस्पांस। थैंक यू सर। डन श्योर। एनी अदर क्वेश्चंस? I have one question, sir. Good morning. My name is Nidhi Sharma. Yeah. And Okay. sir, I'm really sorry I missed first 5-10 minutes of the presentation. So I have just one small question. As this is a diploma course and the duration of the course is 1 year, so will that be conducted in a semester-based session or it would be an yearly exam? No, right now it is a yearly exam. It is yearly exam now. Okay. All right. Okay, that was my question. Thank you so much, sir. Yeah. 1 ईयर का प्रोग्राम है, अगर आप किसी वर्ष इस साल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो 2 इयर्स के अंदर आप अपनी योर प्रोग्राम वैलिडिटी विल बी फॉर 2 इयर्स, और 2 इयर्स के बीच में आप इस प्रोग्राम को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। डन। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन। श्रुति जी, हाँ बोलिए। सर माय क्वेश्चन इज, आपका चांस एक्स्ट्रा आएगा। Are we planning to conduct these practical sessions on online mode or virtual mode or something else? Because फिर epidemic का थोड़ा सा idea हमें मिल ही रहा है, that is why. See, very good question श्रुति जी, क्योंकि अभी तो हमारा एक पैंडेमिक के से गुजर के दूसरे पैंडेमिक में हम जाने वाले हैं। Yes, exactly. तो अगर सिचुएशन अभी हमने यूनिवर्सिटी हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन टू कंडक्ट एनी प्रैक्टिकल सेशंस एज इफ नाउ, right now we are not conducting any because of this pandemic. We may conduct online, अगर इसी तरह से चलता गया तो शायद हो सकता है कि हम हर चीज ऑनलाइन ही करेंगे फिलहाल इस बैच के लिए, क्योंकि ना मगर इसमें एक छोटा सा दुविधा भी है, क्योंकि एज यू नो दिस इज अ थिएटर का है, तो हम एक्टिंग एक्सरसाइजेस वगैरह बाकी पूरा सब कुछ ऑनलाइन कर ही रहे हैं, मगर देयर इज सम प्रॉब्लम विद थिएटर गेम्स एंड प्ले प्रोडक्शन। उसके लिए वी आर सर्चिंग फॉर सम न्यू मेथोडोलॉजीज, वी आर ट्राइंग इन दैट। इफ यू आर सक्सेसफुल वो भी हम ऑनलाइन करेंगे और एग्जाम भी ऑनलाइन करेंगे। वंस वी क्रिएट ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस तो आपका एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे आप कहीं से भी उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम विल ट्राई टू क्रिएट ए मेथोडोलॉजी so that it will go very smoothly. That is what exactly I am also planning. सुबह उठते ही मेरे दिन में यही रहता है कि ये गेम कैसे करें, ये एक्सरसाइज कैसे करें, इसको ऑनलाइन कैसे ले जाएं। Theater games is all about somehow some group activities, no? तो कहीं ना कहीं वो चीज हम मिस करेंगे। किस करेंगे मगर क्या करेंगे, मतलब हम इसके आड़ में जाके फिर हम पैंडेमिक में तो नहीं घुस पाएंगे ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। Exactly. So let us see if everything goes well, we'll do it differently. Otherwise, I'm planning for some online sessions. Okay? तो सर ये चीज कब तक क्लियर हो जाएगी? बिकॉज अगर ऐसा नहीं अभी तो शुरुआत किया है मैंने, डोंट वरी, वी विल सी दैट यू विल कंप्लीट योर प्रोग्राम सक्सेसफुली। ओके, राइट। पराग जी बोलिए। Yes, sir. Good morning, sir. Actually, good afternoon. Yeah. And it was a really very good presentation. And I'm just asking one question, sir. As this meeting is recording, will it be uploaded anywhere? My goodness, this is a tricky question. Once I said this recording will be available from the next session, no one will be attending this session because anyway he is going to upload this session. See, ऐसा नहीं होना चाहिए कि this is for definitely I am going to
share this you in the group. Once it is getting edited, we'll be editing it. No. I just For the benefit of the I people just who have missed the bus, sure we are going yeah. to हम इसको करेंगे. हम इसको बार बार आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, और आपको कुछ क्वेश्चन है तो भी नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं. मैं अपलोड करूंगा इसको जरूर. नहीं, actually I didn't wanted it to upload. But I need to upload it because the demand will be All more. right. See, All out right. of this 90, see, the problem is here कि I have some 95 people who have joined this program. Now you see the Yeah. number is 53. 53 के Yeah. आसपास, Yeah. उसमें मुझे माइनस करोगे तो 52 हो गए. तो बाकी लोग कहाँ गए? वो फिर बाकी लोग मुझसे पूछे रहेंगे, सर हमको बताओ ना. वो Yeah. ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसका जिम्मा भी मेरे ऊपर आएगा. ऐसा हो Okay. जाएगा, है ना. और सर future हाँ future हाँ. assignments and future practicals will they be uploaded somewhere or anywhere? Because That's why I मतलब told Parag, abhi to I didn't upload anything because just now we have started the batch. तो I'll be uploading the theory first. एक assignment theory का मैं upload करूंगा. जैसे हमारा practical sessions कुछ करना शुरू करेंगे हम लोग, जैसे ऑनलाइन शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम we are going for upload the practical assignment. ठीक है. उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. क्या यार. Yes. Thank you, sir. Priyanka raised hand. Priyanka गुड Bharat आफ्टरनून Sharma. सर. Yeah. सर मैं आपसे ये बोल रही थी, सर प्लीज थोड़ा हिंदी में बोला करो, इंग्लिश में क्या मेरे समझ में कम आता है. मेरे को भी कम आता है, मेरी मजबूरी है ना, मैं बोलता हूँ. हिंदी में ही बोलूंगा, मगर हिंदी में बोलना शुरू करूंगा तो जो केरला से एक बच्चा बैठा है वो बोलेगा, सर मैं तो कुछ भी पता नहीं हो रहा है. तो आई विल बी यूजिंग बाइलिंगुअल इन बिटवीन. ओके. मैं थोड़ा इधर बोलूंगा, थोड़ा उधर भी बोलूंगा. ठीक है जी. हाँ सर, प्रियंका समथिंग से समथिंग बोल दिया करो सर. समथिंग आई विल टेल यू. श्योर. और सर मैं ये पूछ रही, ये जो प्रैक्टिकल क्लासें होंगी ये ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी? मैंने अभी तो बताया आपको, ऑनलाइन की कोशिश कर रहा हूँ. एक्चुअली ऑफलाइन होना चाहिए, मगर ये पैंडेमिक की वजह से शायद हो सकता है कि इस बैच के लिए हम ऑनलाइन ही करें, क्योंकि जैसे ओमिक्रॉन या जो भी है उसका नाम, जैसे ही आगे बढ़ रहा है और हम कहीं कहीं ग्रुप को इकट्ठा करते हैं तो शायद दिक्कत हो जाएगा. देखेंगे हम कैसे हो सकता है. कुछ एवरीथिंग गोज वेल, इट्स वेल, ऑल इज वेल, देन वी विल बी मीटिंग फिजिकली, अदरवाइज ऑनलाइन इज को. चंदन. यस सर, वही हिंदी के लिए बोला था सर. गुड आफ्टरनून. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. बताइए. वो सर हिंदी के लिए ही बोला था, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती है. मेरे को कौन सा समझ में आ रहा है हिंदी यार, मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, फिर भी हिंदी बोल रहा हूँ ना. तुम भी कोशिश करो थोड़ा इंग्लिश का समझने का, है ना. और दूसरा ना, जो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि हम थिएटर करते हैं. कोई भी लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो ठीक है. मैं कोशिश करूंगा दोनों में बोलने का, है ना. कभी कभी क्या हो जाता है कि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेरा प्रोग्राम का इंग्लिश है, तो मुझे वो भी अपडेट कर देंगे. आपने बोला इंग्लिश मीडियम है भाई, और तो आप हिंदी में बोल रहे हो, क्या करें. ये पूरा दुविधा है. मैं इधर भी बोलूंगा, थोड़ा उधर भी बोलूंगा, और इन दोनों लैंग्वेज के अलावा मुझे कुछ और लैंग्वेज नहीं आता भैया. ऐसा नहीं है कि सर आप थोड़ा मराठी में बोल, मेरे नहीं हो. अनुज मेरे भाई बता. Good afternoon, sir. I am Anuj Sharma, sir, from I know. Yes, sir. Yeah. सर ये मेरे दो क्वेश्चन थे. एक तो ये है कि जो हमारा थ्योरी एग्जाम होगा वो केवल एक ही होगा? एक ही है ना. रिटन एग्जाम में एक ही है. हाँ, बाकी पूरा एक ही है. हाँ. ओके. और जो हमारा ये जो पूरा जो प्रोग्राम है 1 ईयर का, वो जून एंड है मतलब? हाँ, है ना. जून से आगे नहीं जाएगा. देन फिर आप अगर करना है फिर 2 इयर्स का वो आपको मिल पाएगा? नहीं, वो तुमको मिलेगा, मेरे को नहीं. हाँ, मतलब ये प्रोग्राम जून तक ही है. जून तक एंड है. जून के अंदर नहीं कर पाते हो, जून के अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तुम्हारे लिए टाइम मिलेगा, मेरे लिए नहीं. समझे ना. यस. किसी कारणवश आप इस साल में इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते तो यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डू इट इन अनदर ईयर. हाँ ना. बट सभी लोगों के अनदर ईयर में प्रैक्टिकल सेशन नहीं हो पाएगा कंडक्ट? कैसे करूंगा बताओ. और एक सेशन आ जाएगा ना मेरे सर पे, उनके करूंगा. यस सर. अगर उनके साथ तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है. समझे ना. ओके. हाँ, ये पूछना चाह रहा था सर मैं ही बोल रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू. वो भी अगर नेक्स्ट सेशन में भी आना चाहता है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे ऊपर कोई बात ही नहीं है
कि मैं आपको उस सेशन में भी अलाउ करूं। ये आपका बड़प्पन है, आप मेरे साथ आके उस सेशन में भी ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छी बात है ना। ये सर, हाँ ये चीज मगर है ना, ये जैसे अभी ये 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 ओमिक्रॉन स्टूडेंट का है। लर्नर्स के तरफ से डिमांड नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेशन के लिए ही सीमित होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपके नेक्स्ट बैच से भी, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जो भी मोड होगा उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई ओके प्रॉब्लम सर, नहीं, ओके। क्योंकि आपका वैलिडी है। भरत शर्मा हाथ ओके उठा दिया। हेलो, नमस्ते सर। हम्म हाँ जी सर। सर मेरा सर मैं CPTH वाले में ग्रुप में था, एग्जामिनेशन फॉर्म आया था, उसमें ना मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे गाइड करेंगे थोड़ा सा? तो उस प्रोग्राम का सेशन में पूछेगा ना, ये डिप्लोमा का सेशन है? बस इसका एक्चुअली लास्ट डेट थी ना उसकी कल, तो मैं। तो क्या हुआ बताओ जल्दी से। सर एक्चुअली 1 से लेके 16 तक नंबर आ रहे थे ना, तो वो फिल हाँ, कैसे करना था वो वाला बता दीजिए बस। 1 to 16 क्या? वो नंबर आ रहे थे एक्चुअली, कोर्स फॉर विच अप्लाइंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम OR। OVA1, OVA2, OTH हाँ जी, हाँ जी। 003। हाँ हाँ, जी, वो हाँ जी। तीन ही है, वो तीन ही, या वो तीन ही है, हाँ, तीन ही बाकी में नहीं है। तीनों फिल कर दिया, 1 से लेकर 3 तक। बस बस। हाँ, तो वो सबमिट नहीं हो रहा था उसके बाद। ओ माय गॉड। मगर वो तीन ही है ना, प्रैक्टिकल का कोई कोर्स कोड उसमें नहीं आता है, ठीक है ना। वो एटलीस्ट प्रैक्टिकल 4 का मांग रहा है। एटलीस्ट 4 मांग रहे हैं। वो मांगने से क्या होगा भाई। तो 4 मांगना क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है। OTHL 001 डाल दो, 002, THL 002, ठीक है, हाँ जी। वो ट्राई करो। क्योंकि ना मैं कभी एग्जाम फॉर्म नहीं भरता हूँ, मुझे पता नहीं होता है, ये दिक्कत होती है मेरे से। भारत, समझ रहे हो ना। हाँ जी। मैं थैंक यू सो मैं मच तुमसे सर। ही सीखना पड़ेगा कि क्या भाई उसमें है क्या। थोड़ा देख लेना, अगर और भी मुश्किल होता है तो आई गेट बैक टू यू। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके। अच्छा, अनुज हो गया। अनमोल, अनमोल, अनमोल जी हाथ उठा दिया। एंड देर आर 5 more people who are raising hands. Yeah, Anmol is here. Rishu Singh. Yeah, hello, sir. Yeah, tell me. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. सर मैं जानना चाहता था सर, बुक्स कब तक आएंगे मतलब एड्रेस पे? बोला तो यार सेशन में, दे आर अंडर प्रिंटिंग। एज एंड व्हेन दे यस सर। प्रिंटिंग हो जाएगा आपके घर पे आ जाएंगे। अगर फिलहाल अभी आप वो स्टडी मटेरियल को देखना चाहते हैं तो यस ignoncourse.ac.in, सर। उसमें मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ उस एड्रेस को। आप उसको क्लिक यस सर। करेंगे, वहां जाके सर्च करेंगे DTH, D फॉर दिल्ली, T फॉर थिएटर, H फॉर हैदराबाद डालेंगे तो DTH प्रोग्राम का पूरा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो फिलहाल के लिए। यस ठीक सर, है। यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस बॉस। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आई हैव सेम क्वेश्चन। सर, आपने कहा कि आपके एड्रेस पे नोट्स चले जाएंगे, बट सर आई मेंशन्ड माय होम टाउन एड्रेस ड्यूरिंग द एडमिशन, बट करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, सो चेंज कैसे कर सकते हैं? अरे अपने घर से किसी को बोलो कि वो रिसीव करे और तुमको भेज दें, और क्या। सर, हम एड्रेस चेंज नहीं कर सकते? कैसे करोगे बताओ ना, अभी तुम राखी, करोगे तब। आई विल लेट यू नो, देखो, मैं एक बार सर्च करके फिर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ओके, हाँ ये ओके तो ओके, वी बहुत हैव थैंक द यू। अच्छा। सेम क्वेरी श्रुति जी, ना। सर को परेशान नहीं करते हैं। या थैंक यू। श्रुति जी, मुझे आपने बचा लिया। मगर मैं ये बोल रहा था कि आप जब बढ़ रहे थे तो हो सकता है आप किसी और टाउन में हो। By the time the admission over, you are shifting to another town, but no issue. Somebody else will be there where you have given the address. They can help you out because यूनिवर्सिटी में ये टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स है। आपका एड्रेस फिर वो लेगा और रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा, राखी को देहरादून नहीं दिल्ली भेजना था, ये पूरा देखते देखते भी मटेरियल डिले हो जाता है। तो हो सकता है कि ये आपके एड्रेस जो आपने दिया है पहले उसी पे पहुंच जाएगा, है ना। ये मेरा मतलब, आई एम जस्ट एज्यूमिंग। तो ये हो सकता है कि देखेंगे क्या हो सकता है। एंड किसी और को कोई क्वेश्चन? 6 ये लोगों का सर हाथ। राहुल। राहुल सक्सेना, बताइए सर। गुड आफ्टरनून सर, राहुल दिस साइड। गुड आफ्टरनून। सर, गुड आफ्टरनून राहुल। सर एक्चुअली जैसा अभी आपने श्रुति जी ने भी बताया कि मुझे ना एक्चुअली बेसिकली ये हेल्प चाहिए
आपको परेशान ना किया जाए, तो ऐसा क्या प्रोसीजर है कि कई बार ऐसा होता है कि मिलकर एक मतलब कुछ ऐसा करा जाए कि जिससे आपस में हेल्प हो पाए, क्योंकि मैं आपको 2-3 बार परेशान कर चुका हूँ एंड आई डोंट आई एम Rahul, let me tell you what happens is earlier I used to create the group, उसमें सभी लोगों को मैसेज देने का भी मैंने प्रावधान दिया था। तो ये क्या हो रहा था कि every other second I used to get a messages कि इसमें क्या हो गया सर, आज क्या हो गया, आज कौन सा वार है बता दीजिए, व्हाट इज द टाइम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली कब आ रही है सर, उसका अच्छा मुहूर्त कब है ना। देयर आर मेनी पीपल एंड मेनी काइंड्स ऑफ, सो मैंने उसमें मैसेजेस बंद कर दिए कि मैंने जो ग्रुप क्रिएट किया था, ओनली आई विल गिव यू द मैसेजेस, that will be helpful, but you yourself can have a learning peer group। आप अपना नंबर सभी जानते हैं सभी लोग, आप अपना एक ग्रुप अपना क्रिएट कर सकते हैं खुद का, जहां आप आपस में डिस्कशंस आप कर सकते हो करके, फिर कुछ इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो यू कैन इनबॉक्स मी टू माय पर्सनल व्हाट्सएप, दैट्स नॉट ए इशू। आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीबॉडी टू सेंड मैसेजेस टू माय पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, बट नॉट अननेसेसरीली, जिसका कोई मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो उसमें नहीं है। बिल्कुल, मगर क्या होता है ना, आप जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शायद मेरे लिए नहीं होगा या फिर सारे ग्रुप के लिए नहीं होगा। आप अपना अपना ग्रुप बना लीजिए। अभी जो हमारे सारे स्टूडेंट लर्नर्स है, दे कैन क्रिएट ए स्मॉल ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, वेयर यू कैन इंटरैक्ट, एंड इफ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हिच कैन बी ब्रॉट टू माय नोटिस, दैट कैन यू कैन फॉरवर्ड इट टू मी। ओके, ये हो सकता है, ये मेरा सजेशन है। ओके, अभी कोई क्वेश्चन? Sir, I have one question. Tulsi, hello sir, thank you so much for today's session. And my question is, so what is difference between RC center and study center? Is it same or different? There is no, there are two things, Tulsi. RC center, RC is regional center. RC is known as regional center, where we have some 10 regional center having their own buildings. 10 regional centers having their own buildings, where there is a study center also there. And study center is different. कुछ study centers को हमने create किया है RC के अंडर। एक RC होती है, उसमें बहुत सारे study centers होते हैं, वहाँ पे programs चलते हैं। एक RC होता है जहाँ जिसका own building होता है, वहाँ पे भी एक study center होता है। So this is only the difference. अच्छा सर, मेरा पुणे, हाँ पुणे, मेरा पुणे स्टडी सेंटर है, तो मेरा अगर प्रैक्टिकल होगा तो वही होगा क्या? वही होगा, मगर अब तो ऑनलाइन करेंगे, चिंता मत करो। हाँ, मतलब बार मैं ले रहा हूँ, मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है तुलसी जी, आप पुणे से 2 लोग, मुंबई से 2 लोग, चंडीगढ़ से 3, भोपाल में ऐसा हो गया, तो फिर एक 2 3 बंदों के लिए भी प्रैक्टिकल कंडक्ट करना यूनिवर्सिटी के लिए शायद फीजिबल नहीं है। तो हम उसको कैसे, अगर नंबर ज्यादा होता है तो ठीक है हम कर देते हैं, नहीं हो रहा है तो मुश्किल हो जाती है। जैसे दिल्ली जगह में अभी मेरे पास 90 स्टूडेंट्स हैं, व्हेन इट कम्स टू पुणे 2-3 ऐसे हैं, तो सारे लोगों के लिए हम इस बार, मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन करूं, तो फिर बाद में देखा जाएगा, अच्छा नंबर आएगा तो ईच सेंटर विल हैव देयर ओन टीचर्स एंड दे विल बी डूइंग द काउंसलिंग सेशंस। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच सर। सर वन थिंग आई वांट टू से, फ्रॉम इस माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग, आपने भी बहुत सजेस्ट किया सर कि एक अपना खुद का ग्रुप बना लेते हैं। तो राहुल जी आप इनिशिएटिव लीजिए और एक ग्रुप बना दीजिए। हाँ, एक ग्रुप अपने आप कोई भी बना सकता है, सेंड मैसेजेस। एक्चुअली सर मैं ये स्पेशली इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं अगर इनिशिएटिव लेता हूँ तो मैं किस तरह से लूँ, तो मुझे सबके नंबर्स वगैरह ये नहीं पता कि मैं सबके नंबर ऐड करूँ और सब कुछ है। तो कोई अगर मैं बना सकता हूँ, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक काम कर सकते हो, कौन आना चाहता है मैं ग्रुप पता चलेगा, ग्रुप जनरेट करती हूँ, मैं सर को लिंक भेज देती हूँ, सर सब ग्रुप में डाल देंगे। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। तुलसी विल क्रिएट ए ग्रुप, इसका लिंक मुझे भेज देंगी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यू कैन ऑल एब्सोल्युटली सर। दिस विल बी वेरी गुड। Okay guys, any other questions related to the course? सर नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा नाम रविशंकर है, CPITHA में था मैं सर। पहचान लिया आपको मैं। जी सर।
सर जो भी ऑनलाइन होगा, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो आखिरी में ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन के लिए सारे लोगों के साथ आप प्रैक्टिकल करें, ऐसा अगर। मैं आपके घर आ जाता हूँ, वहीं कर लेते हैं। अरे रविशंकर जी, अभी कोविड चल रहा है इसीलिए, नहीं तो नहीं, आई एम इंटरेस्टेड टू डू ऑन वन टू वन। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, साल के खत्म हो, जब भी साल खत्म होगा या ऐसा, वही मैं बोल रहा हूँ, साल खत्म होता है तो दिल्ली में मैं एक वर्कशॉप करूंगा, सारे लोग आइए, वहाँ एक प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? जी के लिए एक प्रोडक्शन करते हैं, 10 दिन के लिए करते हैं, सभी लोग वहाँ आ जाओ, दिल्ली दर्शन हो जाएगा और हम नाटक भी करेंगे, ठीक है? ओके सर, बढ़िया रहेगा सर, करवा दी। बिल्कुल वही है ना, साल भर में तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो हम विल डू इट श्योर। ओके जी सर, जी। राहुल, अनुज फिर हाथ से उठा दिया यार, तू तेरे को जवाब देना है, क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोल। हेलो हेलो। हाँ अनमोल, मेरा नाम नहीं बोला। भरत झा, बैद्यनाथ सर। वो बैद्यनाथ झा जी, बोलिए सर। वो करियर के लिए पूछना था, जो इसमें करियर कैसा रहेगा फ्यूचर में। तो कोई करियर भी होता है क्या? आई डोंट नो, बट मैं ये बोल रहा हूँ, इस प्रोग्राम से आप नॉलेज सीख के लिए आप नॉलेज सीख सकते हैं। इस डिप्लोमा के लिए आप कोई स्कूल में टीचिंग वगैरह करना चाहते हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके ही दे आर बिकम द टीचर्स, ड्रामा टीचर्स, एक्टिविटी टीचर्स का काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है ना? इस नॉलेज को आप आगे बढ़ा के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको यूज होगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है सर? यस सर। अनमोल कुछ हाथ उठाया, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना, हो गया क्लियर। ठीक है सर। विकास? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। I forgot my password and ID. That's why I can't download my enrollment number. What? Vikas Kumar? Okay. You don't have enrollment number? Yes. Let me check and I'll get back to you. Okay. अच्छा, बैद्यनाथ झा, आप अपना माइक्रोफोन बंद कीजिएगा प्लीज। कोई बच्चे का गाने का आवाज आ रहा है। ठीक है, अभी मैं सभी मेंबर्स जो आर प्रेजेंट हियर उनसे बात करना चाहता हूं कि उनका थोड़ा बैकग्राउंड, मतलब नेम, व्हाट यू एग्जैक्टली डू, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ग्रुप so that everybody, the other fellows who knows about you, no? Anybody can start? Yeah, Nidhi, शुरू करो। Hello everyone, my name is Nidhi और मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली 6 में रहती हूँ और गुड़गांव में जॉब करती हूँ एंड मैं हमेशा से आज की तरफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सो आई जॉइंड कथक एज वेल to learn the expression and the stage performances and all. मेरा वहाँ डिप्लोमा का अभी डिप्लोमा के लिए एग्जाम देना है and I'm trying to pursue masters in Kathak. So and obviously the theater arts is something like stage performances, lighting, presence actually, and theater is always excites me film से ज़्यादा because theater में आपको live perform करना होता है, wherein in films you get shots, you get cuts, like you can take another shot, but in theater you have to be present, अपना presence of mind वहाँ पर जो भी circulate हो रहा है उस time पे stage पे उसमें perform करना है, so it always excited me, so yes, looking forward to it. Thank you sir. Thank you. Yeah, next. Yes sir. Yeah. Yes sir, I am Rakhi. Currently I completed my graduation from Delhi University. Subject anthropology, but recently मैंने एक ईयर का थोड़ा गैप ले लिया है ताकि मैंने सोचा था थोड़ा एक्टिंग में, एंड आई एम अ डांसर टू, एंड अभी मैं डांस सीख भी रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था एक्टिंग में और डांस में, तो थोड़ा मैंने स्विच कर लिया अभी एक ईयर का गैप लेके। सो दैट्स इट। ओके, अभी बस काम चल रहा है। Very good, Rakhi. Yeah. Hello, sir. Yeah, Parag. Yes, sir. My name is Parag Dubey. Everyone, hi everyone. और मैं मेरा बीटेक NIT जालंधर से मेरा बीटेक है
मैं 2010 पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन मेरा, एंड ओके आई एम डूइंग थिएटर फॉर लास्ट 16 years, एंड ओके I have done, I am directing plays. I have my own theater group. I am directing ओके plays for last 9 years, and I have ओके directed more than 100 plays. And I have my own YouTube channel. I've made some short films and solo plays, and I've uploaded on my YouTube channel. And I'm just here for the diploma so that I can get a job in a school. Okay, Parag, you can teach us many things. No sir, no sir. One Yeah, yeah. question, Parag, do you have a theater group in Delhi also? मतलब No, 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 कोई no. We usually perform in Bhopal, Mumbai, and Bangalore. Okay. Okay, कभी दिल्ली का हो तो please let us know so that we I can have. also join. Yes, sir. Yes, Okay. yes, ma'am. Yes, ma'am. We Sure. can also I'll get. utilize our learnings, everything. Yeah, Practically yeah. हमारा वहाँ Yes, पर भी sir. थोड़ा Yes, documentation yes. हो जाएगा. I am also interested. Please let me know जब भी Okay, Delhi में हो. one of my solo Yeah. plays. Yeah. Okay. Okay. Yeah. We'll We'll get give back to time you, to others. Parag. Yeah. 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 Davish. Hello everyone. I am Rahul Saxena. Yeah. I am a stage artist from past 25 years and Oh. experience of 15 years in theater. LTG Okay. repertory and I was a born actor आप कह सकते हैं, मतलब मैं काम करता आ रहा हूँ काफी टाइम से, बहुत पहले से. बढ़िया. Around about 8 to 10 years experience in teaching theater in Okay. schools, in colleges, institutions and all. But right now I'm going to achieve something in degree wise or diploma wise because I Okay. need certificates for some courses and all. तो इस Okay. वजह से मैं थोड़ा सा इंडल्ज हूँ अभी, इन लोगों के साथ थोड़ा काम करना शुरू कर रहा हूँ. और बाकी आई एम एसोसिएटेड विद आस्था ग्रुप ऑल्सो. आई एम वाइस प्रेसिडेंट इन आस्था. वहाँ पे हमारे प्लेस वगैरह होते रहते हैं. डेफिनेटली अगर हमारा एक अच्छा ग्रुप बनता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल्स और सब कुछ करते रहेंगे. आगे मिलेंगे जरूर साथ में. और थिएटर के लिए बस शुभकामनाएं सब लोगों को, बहुत अच्छे से काम करेंगे हम लोग. और बस ये सर की गाइडेंस हमें मिलती रहे प्रॉपरली टाइम टू टाइम और अच्छे से हम लोग कर पाए. बस ये आपकी विशेष चाहिए सर, आपका आशीर्वाद चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए. Thank you. Yeah. Thank you, Rahul bhai. Next. Thank you, Rahul. Yeah. Solanki. यस सर, मेरा नाम देवेश है और मैं दिल्ली से हूँ सर, वेस्ट दिल्ली. एंड Okay. सर मैं ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर है इस साल और मैं पिछले 3 साल से थिएटर भी कर रहा हूँ. सो Okay. बीच में ये कोविड आया था तो हमने जो कॉलेज का ही थिएटर ग्रुप है, कॉलेज में जो ड्रामेटिक सोसाइटी होती है वहीं से शुरुआत हुई थी. तो उन लोगों ने, हमने 5-6 लोगों ने एक साथ इकट्ठा मिलकर डिप्लोमा भरा था क्योंकि सबको ही लग रहा था आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. तो 1 साल का Okay. डिप्लोमा है ये, जब तक हमारी ग्रेजुएशन होगी तब तक हमारा डिप्लोमा भी हो जाएगा. तो एक साथ 2-2 डिग्री हो जाएंगी, ऐसा सोच के अरे भरा था और वाह. फायदेमंद भी रहेगा. तो Very सर good. वही था. Very good. और Good. यहाँ आके देख रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है. यहाँ आके देख रहे हैं तो इतने सारे कला प्रेमी बैठे हैं, इतने सारे, मतलब 9-9, 11-11 साल का एक्सपीरियंस लेके मजा आएगा इनके साथ हाँ. काम करके. मेरे को I'm अभी डर so लग रहा है pressure. इतने एक्सपीरियंस लोगों के लिए. तो मैं कैसे काम करूंगा? मैं तो फ्रेश आया हूँ अभी. सर मैं भी हाँ. फ्रेशर हूँ मतलब थिएटर्स के लिए, क्योंकि कोविड प्लीज. की वजह से स्टेज परफॉर्मेंस नहीं हो पाई. मेरे हम को साथ बहुत में सीखेंगे सर, साथ में बिल्कुल. सीखेंगे. ओके. ऑल आर एक्सपीरियंस्ड. ऐसा नहीं है, हम लोग That's सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, सब कुछ है. कोई है किसी का कम किसी का ज्यादा, वो मैटर नहीं करता. मैटर सिर्फ ये करता है कि सीखने की ललक होनी चाहिए. पता चला यार 16-17 साल का एक्सपीरियंस कम पड़ जाता है कई बार 2 साल के एक्सपीरियंस से आगे, ट्रू. जब हम प्रैक्टिकल लिया हो कुछ हम सकता है. हो ऑन सकता स्टेज काम कर रहे हैं. है. तो या ये सब चीजें एनीवन जरूरी एल्स? है. या हेलो. हाँ या सर, मैं अनुज शर्मा मेरठ से. हाँ जी, बोलिए. हाँ सर, मैं 15-16 साल से थिएटर कर रहा हूँ. अभी मैं बढ़िया. एक बात जोड़ना चाहता हूँ. जो ये सभी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस 15-16 साल से मतलब थिएटर से जुड़ा होना अलग बात है. एक आपने प्रेजेंटेशन कितनी दी है, कितने प्लेस करे हैं आपने, कितना डायरेक्शन किया है, वो मेन अहम करता है. कोई कहता है कि मैं 15 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन 15 साल से जुड़ा होना कहाँ तक वो है, आपने उसमें कितना गेन किया है, वो अहम बात होती है. ठीक. तो मैं भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ. मैं इप्टा इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन में था. अभी मेरा अपना एक लहर नाट्य मंच के नाम से मेरठ में चल रही है संस्था, जिसमें मैंने अभी डायरेक्शन किया है. 2-3 नाटक ही किए हैं. अंधा युग, पगड़ी संभाल जट्टा, जाति पूछो साधु की. और सिपाता ग्रुप मैंने सर के सानिध्य में रहकर किया है, गोविंद राजू सर के. और अब डिप्लोमा थिएटर आर्ट्स वहीं से पता चला, तो इसमें भी आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा. और अच्छा है, आपसे जितना आपसे बात करते हैं उतना अच्छा लगता है. और
जितना भी है हम यही चाहेंगे सर कि जैसे ही ये अब पेंडेमिक का हो खत्म हो और हम एक प्रोडक्शन जरूर करें। बिल्कुल 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 बस ये अनुज, हमारी बिल्कुल इच्छा बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल, या यस सर। श्योर। नेक्स्ट अनुजा, अनुजा हल्दा। गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Am I audible? Tell me. Yeah, you are audible. Yeah. So, hello everyone. My name is Anuja Haldar. I have done my graduation and post graduation both in English, and वहाँ से ही मैकबेथ और घासीराम कोतवाल इन सब चीजों को मैंने पढ़ा है, बट वो बुक्स और सब चीजों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। तो आई हैव अप्लाइड हियर बिकॉज मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए था। कॉलेज के थिएटर्स या फिर इन सब चीजों में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिले। तो इस वजह से आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू ऑल। रियली नाइस टू मीट यू। Sure. थैंक यू सर। Yeah. Next. Yeah. Next. Hi, sir. My name is Ruchi Sharma, and I'm from Mumbai. I'm doing PhD. Okay. I'm preparing for PhD in home science, but I've never learned theater because since 10 Okay. years I am doing stage plays, but I've never learned theory from anywhere. So I joined this course because I'm Okay. changing my passion into career in teaching. So that's why I'm looking for the diploma Sure. course. Good. 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 Okay. Yeah. Next. Abhishek है? Abhishek is here. गुड मॉर्निंग सर। गुड Yeah. मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। मैं सीए का सीपीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और अभी आज ही मेरा भी एग्जाम है। आधे घंटे में मैं एग्जाम के लिए निकलूंगा सीए के एग्जाम के Very लिए। good. All the best. और मैंने ये डिप्लोमा का एग्जाम इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को इसमें बहुत पैशन है, मेरे को करना है ये काम। बिल्कुल। मेरे को इस करियर में ज्वाइन करना है। Done. थैंक यू सर। Thank you. Next. सर विकास के बाद कुमार कौन है? here. हाँ, tell me. सर मैंने लास्ट ईयर आपके साथ ज्वाइन किया था सिपाता वाला प्रोग्राम। Okay. हाँ. Yeah. बस सर अभी वही थिएटर कंटिन्यू है, स्टडी कंटिन्यू है और आगे भी सीखना है, तो इसलिए मैंने डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है ताकि और मैं ज्यादा सीख सकूं। अभी लर्नर हूँ, तभी कोशिश ये है कि जितना ज्यादा सीखने को मिले तो मैं सीखता रहूं। Done. Thank you. Alvin is here. Nigel. हाँ. Yes, hello, sir. How are you? Good afternoon. Fine. Thank you so much for the presentation, sir. And my name is Nigel. I'm working in a school. I'm a librarian, and I also direct musical theater. So I wanted to learn more about theory. I'm mostly into Broadway. Okay. I do a lot of jazz and Broadway theater and drama and acting. But I wanted to learn more about the background of acting, the theory, what all goes into productions in an advanced level. So that is why I had to do the diploma course. Done. It's a beautiful experience working with you right now. So I hope that in the future we would learn much from you. Thank you, Nigel. Thank you so much. Thank you very much. Alvin is here. Amit Viduri. Hello, sir. Yeah. Hello. Yeah. Tell me. Hello everyone. सर मेरा नाम रिशु है, मैं बिहार से हूँ। सर मैंने लास्ट ईयर 12th कंप्लीट किया, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एक्टिंग में है, तो मैंने ये इग्नू में देखा डिस्टेंस कोर्स, ये डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट का, तो मैंने सोचा इसमें एडमिशन ले लूँ। तो इस दिन का इंतजार कर रहा था कब ये स्टार्ट हो, फिर मैंने ये ज्वाइन किया। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर, इसके कंप्लीट होने के बाद क्या इसका मतलब चांसेस है कैरियर में, या फिर मैं और ये मैं जानना चाहता हूँ जैसे एनएसडी दिल्ली है तो उसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, बट मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, बट अभी मैं स्टार्ट किया हूँ ये जो एडमिशन। यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। यस सर।
हाँ, मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। ये देखो, एनएसडी में ज्वाइन करने के लिए तुमको ग्रेजुएशन चाहिए, 5-6 नाटक का एक्सपीरियंस चाहिए, ये पहले ले लेना, सर फिर 10 बाद में प्लेस का इसको। एक्चुअली, हाँ 10 प्लेस हाँ, का एक्चुअली चाहिए, 10 10 प्लेस का चाहिए, प्लेस। ग्रेजुएशन भी चाहिए आपको, 30 ठीक है ना? years I guess is the last. या यस अभी तो सर, मुझे ग्रेजुएशन चाहिए हाँ, बस। ये डिप्लोमा ग्रेजुएशन कर मतलब लो इससे पहले तो। ये डीटीएस तो के बाद नहीं हो सकता, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। नहीं नहीं, वो उसको यस ग्रेजुएशन करना सर, पड़ेगा, ठीक ओके है ना? सर। राइट है। कोई और? सोनी? हेलो एवरीवन, सर आई एम चेतन गहलोत फ्रॉम दिल्ली। चेतन के सर ओके, मैं करंटली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ दिल्ली में ही, और मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, हाँ जी सर, और अब सर थिएटर से सीखना है एक्टिंग जितना हो सके आपके साथ, सबके साथ। थैंक यू। आई होप अच्छा एक्सपीरियंस रहे। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। विजय सोनी जी बोलिए। सर नमस्कार। मुझे लगता है सर सबसे सीनियर मैं ही हूँ यहाँ उम्र में। मैं 60 साल का हूँ और अच्छा, BSNL में था सर, मैंने VRS लिया है। और अच्छा, खंडवा में मेरा अपना खुद का थिएटर ग्रुप है सर, 25 साल से थिएटर कर रहा हूँ। वेरी गुड, लगभग 10 नाटकों का निर्देशन भी किया और 20-25 नाटकों में काम भी किया है। क्या बात। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं था, सब देख देख के करके सीखा है। तो एक डिग्री भी चाहिए थी, उस हिसाब से सर मैं और लोगों से जुड़ना पड़े और सीखने को मिले, इसलिए मैं ज्वाइन किया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, ऐसा है कि लास्ट टाइम मेरा लास्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, शी वाज 65 years old. She has joined my program and she was thoroughly enjoying that program, you know. तो थिएटर के लिए एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेलकम टू डिप्लोमा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट लर्निंग फ्रॉम both of us, like, you know, from the peer group and also टीचर्स यहाँ दोनों तरफ से कराएंगे, ठीक है ना? और कोई? सर मैं आए? हाँ प्लीज। Hello. Hi sir, this is Zubain Sheikh. I am from Pune, Maharashtra. I've been doing theatre since past 12 years. I'm working as an actor, writer, and director. Okay. And at the moment, I'm also working in an IB World School as a drama teacher. Okay. And the reason behind joining this course is I've been doing productions here in Pune mostly. I actually wanted to collaborate with different theatre personalities across the border, and also wanted to learn different aspects of theatre from the experienced people and my co-students. So that is the main reason I have joined this course. Sure. Thank you, sir. Okay. Okay. Yeah. Anyone else? Hello, sir. Yeah. Hello, sir. My name is Cheshta Ahuja. Cheshta. I'm from Chandigarh. मैं प्रेजेंटली ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 3rd ईयर BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स। बट मेरा शुरू से ही थिएटर, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने फिल्म मेकिंग में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है लॉकडाउन में, एंड मैं मिस इंडिया ग्लैमर 2020 की 2nd रनर अप भी रह चुकी हूँ। क्या बात। एंड आई हैव सम वेरी गुड एक्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. So okay, I wanted some knowledge about theatre, so that is why I joined this course. Sure, Cheshta, all the best. Thank you so much, sir. Next. Hello. Good afternoon. Hello, sir, this is Saguna from Jammu and Kashmir. Okay. सर मैंने इसी साल सर्टिफिकेट इन थिएटर प्रोग्राम भी आपके अंडर आपकी गाइडेंस में किया है। हाँ जी। और आई एम अ टीचर प्रोफेशनली और थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, कुछ स्क्रीन प्लेस भी किए हैं। मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ और इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड भी हैं, बट जो सर लास्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स में जो हमने आपसे सीखा है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। मैं तो स्पेशली मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो आपने हमें सिखाई है वो वाकई कहीं नहीं सीखी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट की और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आई एम श्योर अबाउट दिस। Thank you, Suguna, and thank you so much. welcome to this diploma class. Okay.
ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ कुछ बोलना चाह रहे थे, निकल गए। Hello. चलो, हाँ बोलो। Good afternoon, sir. My name is Vaidnath Jha. I am BSc graduate from Indira Gandhi National Open University, New Delhi. सर मैं मुंबई में रहता हूँ अभी, और सर मैं एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानना चाहता हूँ। श्योर। क्या हेमांक सोनी? कोई और है अपने बारे में बताना चाहते हैं? हेलो सर। क्या? हेलो, आई एम उत्कर्ष गुप्ता। उत्कर्ष बोलो। यस सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है अभी लास्ट ईयर 2020 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और थिएटर से 3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 3 साल से, और मैंने कुछ थिएटर प्लेस किए हुए हैं और एक फीचर फिल्म में भी काम किया हुआ है, सफाईबाज। सफाईबाज जो राजपाल सर की थी, जो अभी रिलीज हुई है रिसेंट, तो उसमें मैंने एक स्टूडेंट प्ले किया था। और मैं बेसिकली बनाता था। लॉकडाउन में मैंने 20 अबव मोनोलॉग्स बनाए हुए हैं, उसे मैंने अपने इंस्टा पे अपलोड किया है, यूट्यूब पेज पे अपलोड किया हुआ है। ओके। यस सर। उत्कर्ष, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उत्कर्ष मोनोलॉग किंग। Anyway, all the best. All the best. Thank you so much, sir. Yeah. Anyone else would like to share some of the things? Sir, I have one question actually. I'm sorry, I'm asking in between. Sir, actually थिएटर के लिए मेरा बिल्कुल ही फ्रेश एक्सपीरियंस है, एंड आई हर्ड कि यहाँ पे सबने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं और वो ऑनलाइन है। जस्ट वांटेड टू नो सर, जो आपने लास्ट ईयर कोर्स डिलीवर किया था, क्या उसके भी रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, सो दैट वी वेबसाइट पे यूट्यूब पे है, यू कैन सी दोस थिंग्स। CPA THA इग्नू अगर टाइप करेंगे उसमें मिल जाएंगे आपको। बट इस कोर्स का जो रिक्वायरमेंट होगा हम फिर से फ्रेशली कंप्लीट करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली कोर्स ज्वाइन करने से पहले थोड़े से बेस, मतलब एक प्री वो थोड़ा क्लास प्रेप करना चाहते थे। आप देखना चाहेंगे तो दे सकते हैं। CPA THA इग्नू करके टाइप करेंगे तो आ जाएगा, CPA THA। हाँ, यूट्यूब में जी सर, ठीक है, हो जाएगा। यस, थैंक यू। anyone else would like to share anything? I just had a question. Yeah, please. I just wanted to know, sir, once you upload the theory assignments and practical assignments, you will let us know on the WhatsApp. Yeah. After uploading? After uploading the theory assignments, will you let us know on the WhatsApp that it's uploaded? Sure. And once we complete the assignments, how are we to deliver it to the I'll tell you, because this in COVID situation, what I am planning is I'm preparing a assignment that you are supposed to write it in a A4 size sheet paper, and you scan them and send it in one single PDF to the mail address I will be going to provide you, so that I'll be receiving it. That is the process which I know I'm following. I'm also thinking about creating some Google Forms also. If Google Forms is हो जाता है, उसमें कुछ technical problems there I'm facing it. Otherwise, I will upload the written assignment. You need to write those assignments in a A4 sheet paper and scan all those papers, and in single one PDF format, you just send me through mail. Okay? Okay, sir. Thank you so much. Yeah, Chandan Kumar. हेलो सर, मैं चंदन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, और मैं थिएटर में 14 साल से अभी सक्रिय हूँ। अरे वाह। और स्वास्थ्य विभाग में भी सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और थिएटर में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा जानने का मतलब ये है, सपना है, और मैं चाहता हूँ कि आपसे जो है मिलकर और अच्छे से जो नाटक को समझूं। बिल्कुल चंदन जी, और आपका यहाँ वेलकम करता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट चंदन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू चंदन। एनीवन एल्स? हेलो। हाँ, अमित। हाय सर। हाँ जी। मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में इग्नू से, और बीएड किया है, और थिएटर के लिए मैं बिल्कुल नया हूँ। और सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मैंने ये लेट ज्वाइन किया,
कि स्टार्टिंग में आपने कुछ क्लासेस के या कुछ ऐसा कुछ बताया, या फिर ये रिकॉर्डेड सेशन अगर हमें स्टार्टिंग से देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं? भैया ये पहला सेशन है इस बैच का, है ना। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा इसको। ओके ओके ओके। कोई भी सेशन हम करते हैं उसके बाद थोड़ा टाइम होने के बाद 1 दिन में या 2 दिन में उसकी रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करते हैं। एक इसके लिए हम एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें फिर ये सारे वीडियोस उसमें चले जाएंगे, वहां पे भी जाके आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, 2-3 जगह से हम मिल सकते हैं। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, अगर हम सेशन मिस करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हमको वो DTH का एक चैनल बना रहे हैं हम लोग, उसमें मिलेंगे और आपको भी ये फॉरवर्ड हो जाएगा ग्रुप में और उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? सर ग्रुप क्रिएट लिंक भेज दिया आपको ग्रुप के? मेरे को भेज दिया, मैं ग्रुप में भेज दूंगा और सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना। ओके गाइज, आई थिंक टुडे वी हैव डन विद इट एंड आई होप टू डू सम काउंसलिंग क्लासेस इन बिटवीन एंड एज एंड व्हेन होगा मैं एक दिन पहले आपको लिंक शेयर करूंगा ताकि आपको उसी दिन तुरंत नहीं मिले। मतलब सपोज 1 day in advance I will send you the link so that you can plan for the session and you can join accordingly. Okay, all the best. एक दिन पहले मैं लिंक भेजूंगा, I will send you 1 day in advance the counseling session का लिंक जो भी होगा मैं भेजूंगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। ऑल द बेस्ट, गुड डे।